Good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 55 turn, and from this lecture I am going to start your accounting ratio chapter. And in accounting ratio, today I am completing meaning of ratio, objectives of ratio analysis, classification of ratios, and some numericals I am covering in this lecture. Now see what is ratio. Ratio is the relationship between two figures expressed in arithmetical term. Ratio is relationship between two figures expressed in arithmetical term. A ratio is simply one number expressed in terms of the another. It is found by dividing one number into the another. Objective ratio analysis. We do ratio analysis to locate the weak spots of business which need more attention. हमारी current assets क्या है, current liabilities क्या है, current ratio क्या है, हमारे जो weak spots होते हैं business के उसको find out करने के लिए we do ratio analysis to provide deeper analysis of the liquidity, solvency, activity and profitability of the business. We do account ratio analysis to provide information for making time series analysis. We do ratio analysis. Classification of ratio analysis. Ratio analysis may be classified into four categories: liquidity ratio, solvency ratio, activity or turnover ratio, profitability ratio or income ratio. Is it clear? Four ratio analysis are there. In this lecture, I am going to explain you liquidity ratio. Liquidity refers to the ability of the firm to meet its current liabilities. Current liabilities को meet करने की जो ability होती है firm की, इसको find out हम liquidity ratios के through करते हैं. The liquidity ratio therefore are called short-term solvency ratios. को short-term solvency ratio भी कहते हैं. These ratios are used to assess the short-term financial position of the business. ये business की short-term financial position को assess करती है और indicate करती है firm's ability to meet the current obligation out of the current resources. Liquidity ratio include current ratio, quick ratio. Current ratio, this ratio explains the relationship between current assets and current liabilities of the firm. क्या होती है current assets बेटा? Current ratio क्या होता है? Current ratio, this ratio explains the relationship between current assets and current liabilities of the firm. Current ratio का जो formula है current assets upon current liabilities होता है. What is current asset? Current assets are the assets which are likely to be converted into cash or cash equivalent within 12 months. वो asset जो 12 months में cash या cash equivalent में convert हो जाती है, it is known as current assets. Current assets जो है आपके balance sheet में के डेट से लेकर आपके ऑपरेटिंग साइकिल में आता है करंट रेशियो 12 मंथ्स में ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाती है. करंट एसेट्स इंक्लूड करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स. नो नेक्स्ट इज क्विक रेशियो और जिसको हम कहते हैं एसेट टेस्ट रेशियो. क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो. करंट लाइबिलिटीज़ तो आप सबको पता ही है. करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है विच हैज़ टू बी पेड विद इन 1 year ऑफ टाइम. करंट लाइबिलिटीज़ इंक्लूड्स करंट लाइबिलिटीज़ इंक्लूड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. करंट लाइबिलिटीज़ इंक्लूड्स ट्रेड रिसेप्ट, ट्रेड पेबल्स. करंट लाइबिलिटीज़ इंक्लूड्स क्रेडिटर्स, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट. इट इज़ द पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़. नाउ नंबर 2 इज़ क्विक रेशियो. करंट रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. क्विक रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो रेडिली कन्वर्ट हो जाती हैं कैश में. लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं इंक्लूड होते हैं. इट मीन्स लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हो तो इट बिकम्स लिक्विड एसेट्स. दस लिक्विड एसेट्स इंक्लूड करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स और एडवांसेस. नाउ सी बेटा, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए सॉल्वेंसी रेशियो के, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो. करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. ठीक है. लिक्विड एसेट्स क्या होती है? लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू: गुडविल, इन्वेंट्री, trade receivable, less provision, investment, expenses paid in advance, cash and cash equivalent, accrued income, short term provision, short term borrowings, trade payables and expenses payable. आपको क्या कैलकुलेट करना है? ये आइटम्स आपको गिवन है, इससे आपको जो है करंट रेशियो कैलकुलेट करना है. यू हैव टू फाइंड आउट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, दोनों फाइंड आउट करने हैं. इससे आपको सी करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. अभी आपको फॉर्मूला बताया था करंट रेशियो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. आप करंट एसेट्स इस क्वेश्चन में देखिए, करंट एसेट्स में क्या क्या आइटम आ जाते हैं. करंट एसेट्स इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल्स, short term investment, cash and cash equivalent, expenses paid in advance, accrued income. It is the part of
करंट एसेट्स, सी करंट एसेट्स में क्या क्या आइटम्स आ रहे हैं बेटा, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस एक्रूड इनकम करंट एसेट्स हैं. करंट एसेट्स इट मीन्स करंट एसेट्स आपका जो टोटल आ गया दैट इज 4,80,000. करंट लाइबिलिटीज आर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्लस ट्रेड पेबल्स प्लस एक्सपेंसेस पेएबल. तो करंट लाइबिलिटीज आ गए आपके 1,50,000. करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. आप फॉर्मूला पोस्ट कर दीजिए 4,80,000 अपॉन 1,50,000. करंट एसेट्स कितनी है 4,80,000, करंट लाइबिलिटीज 1,50,000. तो करंट रेशियो इज 3.2:1. देन क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है, लिक्विड एसेट्स माइनस अपॉन करंट लाइबिलिटीज. लिक्विड एसेट्स होती है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री ना माइनस पेमेंट इन एडवांस. क्वेश्चन में गिवन है बेटा ये. सी इन्वेंट्रीज गिवन है 2,50,000 की और क्या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस गिवन है आपके 20,000 के. तो ये दोनों आइटम्स इसमें से माइनस हो जाएंगे. 2,50,000 और 2,10,000 20,000 माइनस हो गया तो 2,10,000 आ गया. तो क्विक रेशियो है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. लिक्विड एसेट्स कितनी हो गई 2,10,000 अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ कितनी हो गई आपकी 1,50,000. तो इट इज़ 1.4:1. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. टोटल एसेट्स 40 लाख, नॉन करेंट एसेट्स 22 लाख, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ गिवन है. बेटा करंट एसेट्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये भी होता है टोटल एसेट्स माइनस नॉन करेंट एसेट्स. टोटल एसेट्स माइनस नॉन करेंट एसेट्स इज ऑल्सो करेंट एसेट. और आपका जो है शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ को टोटल एसेट में से माइनस कर दीजिए. टोटल एसेट माइनस शेयर होल्डर्स फंड माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू करेंट लाइबिलिटी. ऐसे भी हम कैलकुलेट करते हैं. करंट रेशियो क्या हो गई करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. करंट एसेट्स हो गई टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स. टोटल एसेट्स की वैल्यू है 40 लाख, नॉन करंट एसेट्स 22 लाख माइनस हो गया तो करंट एसेट्स आ गए 18 लाख. करंट लाइबिलिटीज़ टोटल एसेट्स माइनस शेयर कैपिटल माइनस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू करंट लाइबिलिटीज़. तो 40 लाख में से आपने माइनस कर दिया 2,40,000 माइनस 3 लाख माइनस 8 लाख. Current liability is 5 lakh. Current ratio is current assets upon current liabilities 18 lakh upon 5 lakh. Current ratio is 3.6:1. ठीक है. अब एक और टॉपिक है आपका वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बता रही हूँ मैं आपको बेटा. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट. ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है करंट लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए. सेकेंड थिंग बेटा इसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो सब आपके छोटे क्वेश्चन हैं जो आप रीड करके समझ में आ जाएंगे. नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हुआ है. सी क्वेश्चन नंबर 11. कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग. वर्किंग कैपिटल 1,92,000, लॉन्ग टर्म डेट 80,000 एंड टोटल डेट 2 लाख. तो करंट लाइबिलिटीज़ आपने कैलकुलेट कर ली. टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट 1,20,000 करंट लाइबिलिटीज़ आ गई. करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज़. देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. तो आपको अगर करंट एसेट्स निकालनी है तो वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज़ क्या हो जाएगा करंट एसेट्स हो जाएगा. वही यहाँ पे यूज़ करा है बेटा फॉर्मूला. करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज़. वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 1,92,000. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. तो करंट एसेट इज 1,92,000 प्लस 1,20,000. इट इज़ 3,12,000. करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ 3,12,000 upon 1,20,000. It is 2.6:1. Now see question number 15a. A firm had current assets of rupees 4,10,000. It then paid trade payables of rupees 50,000. After this payment, the current ratio was 2.4:1. Ascertain the amount of current liabilities and working capital after payment. बेटा फर्म के पास एसेट थी करंट एसेट 4,10,000 की. उसके बाद उसने ट्रेड पेबल को पे कर दिया 50,000 का. और जब ट्रेड पेबल को पे कर दिया उसके बाद का जो करंट रेशियो दैट इज़ 2.4:1. तो उससे आपको करंट लाइबिलिटीज़ और वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है आफ्टर पेमेंट. सी करंट एसेट्स बिफोर पेमेंट made to trade payables is equals to rupees 4,10,000. पेमेंट टू ट्रेड पेबल कितना है 50,000. करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल कितना हो गया 4,10,000 माइनस 50,000. इट इज़ 3,60,000 आफ्टर पेमेंट. करंट लाइबिलिटीज़ गिवन नहीं है क्वेश्चन में. करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट गिवन है 2.4:1. तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है करंट एसेट्स आफ्टर पेमेंट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. तो करंट एसेट्स जो आपका आफ्टर पेमेंट आपने कैलकुलेट कर लिया इट इज़ 3,60,000 अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू करंट रेशियो आप करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट गिवन है 2.4/1. तो 3,60,000 अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ इज इक्वल्स टू 2.4/1. तो करंट लाइबिलिटीज़ इक्वल्स टू आपका कितना आ गया 1,50,000. 3,60,000 अपॉन 2.4 इट इज़ 1,50,000. तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. 3,60,000 माइनस 1,50,000. तो वर्किंग कैपिटल इज 2,10,000.
नाउ सी बेटा क्वेश्चन नंबर 16A, करंट रेशियो गिवन है 2:1, क्विक रेशियो गिवन है 1.5:1, करंट लाइबिलिटीज 1,60,000, कैलकुलेट करंट एसेट्स, क्विक एसेट्स एंड इन्वेंट्रीज। ये 3 आइटम्स कैलकुलेट करने हैं बेटा। करंट रेशियो क्या गिवन है आपका 2.2:1, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, 2/1 करंट रेशियो है, तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स हमें नहीं पता, करंट लाइबिलिटीज इज 1,60,000, तो करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन 1,60,000, 2/1 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन 1,60,000, तो करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 1,60,000 इंटू 2, it is 3,20,000. Quick ratio, liquid assets upon current liabilities, लिक्विड एसेट्स क्वेश्चन मार्क है, क्विक रेशियो नहीं पता है हमें, क्विक रेशियो 1.5:1, तो लिक्विड क्विक रेशियो के फॉर्मूले में पोस्ट कर दिया 1.511 इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज हमें पता है 1,60,000, तो लिक्विड एसेट इज 1.5 इंटू 1,60,000, इट इज़ 2,40,000. इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स, तो करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को माइनस